Hello, everyone, and welcome to the Talents Podcast, episode number 20, where we are going to dive into the fascinating world of die-cast car collecting. So, today we have our special guest, Mr. Divyanshu, who have a wealth of knowledge to share with us. Welcome to the show, sir. Thank you. My first question is, what sparked your passion in die-cast car collecting? Okay, yeah, that's a very interesting one. See, when I was a child, I was very fascinated by cars, and there's a very interesting story behind that. I think I was probably 2 years old, and there was a guest at my place. He had this car magazine. He showed me that magazine, and he told me that he would hide the name. Like he would just hide the name of the car, and he said, "Guess which car is this?" That time, I think Indica, Maruti 800, these kind of cars were there in the market, and I could guess it. I would say this is this. Then he asked me that, okay, how do you guess it? He told my parents that he's able to guess all the cars. What's going on? And they said he can't even read yet. So my love for cars, it was very. Like ever since I was born, I think I got it from my grandfather. That's what I think, because he was a very fascinating. He was a lot into cars. So then, as I grew up, got a lot of toys from my family, proper toy cars. That time, no collection, nothing. I destroyed all of them. Very destructive as a child, and just destroyed them. Then, when I grew up, I think probably when I entered my teenage, then I realized that okay, these are very collectible items, and love for cars was always there. That never faded. That's what. So I started picking up. I used to go grocery shopping. Maybe I went somewhere, Big Bazaar or somewhere with my mom or parents. I would just pick one. I'd pick two, and slowly over the years it accumulated, and then that suddenly vamped up. That suddenly ramped up when I was at home alone in the lockdown, and I had nothing else to do, and a lot of people had nothing to do, but still I had my hobby, which was collecting and all of these. So उस time से it just rocketed from there. And is there a purpose आप इसको कर रहे हैं इसके पीछे? See, कोई एक purpose तो होगा. Honestly speaking, it's a lot about my love for cars, and I think my two passions, like real cars and die cars, they are very intermingled. Yeah, of course. So आधी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रोड पे कोई गाड़ी अच्छी लगी, उसका मुझे डाइकास्ट चाहिए, तो वैसे मैं उसका डाइकास्ट लिया, छोटा मिनिएचर. और हो सकता है मुझे कोई डाइकास्ट मिली पेग्स पे, शॉप पे, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन किया, तो वो काफी अच्छे से चलता है. वैल्यू इनकी होती है. दीज आर एक्चुअली कलेक्टिबल्स, दीज आर नॉट टॉयज. सो आई टेल यू, on an average you gain close to 40% per year on a diecast. If you buy it for 100, next year it will be 140, the next year it will just it keeps going upwards. So if you look at it from a strategic standpoint, if you keep them properly, these are very good investments also. Not that I am into trading or selling. I just like to keep them. नहीं, of course, but ये चीज जानना बहुत अच्छा होता है that if you have something उसकी value increase हो रही है, because if you do one thing, जब मैंने चीज देखी, अगर आपको एक चीज के अंदर 100 people telling you not to do this, कि यार थोड़ा time waste कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, and then once you start getting return on your investment, at least it feels good. अपने heart को तो अच्छा लगता है. Right. No, I mean that's absolutely correct, because see what happens is when you start, even when I started, even today. Those people are actually called hobby shamers. मतलब आपकी कोई hobby है, anything it can be. Painting भी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्यों टाइम इतना बर्बाद कर रहे हो? मेरे साथ होता है, even I'm into collecting like you, तो मेरे साथ होता है. हाँ, फिर वो अच्छा, जैसे मेरा तो थोड़ा actually ये childish item हो जाता है, तो लोग बोलते हैं बच्चा है क्या, friends के साथ भी जाओ तो they'll always have two taunts ready for you. The moment you step into the toy aisle, they'll be like, अरे वहाँ क्यों जा रहा है भाई, इतना बड़ा हो गया, तो किसी और चीज पे ध्यान दे. So you get all of that, but then the thing is that you have to have faith in your passion and do what you like. जैसे आप भी कलेक्ट करते हो, तो you do it because it gives you satisfaction. Of course. And that sense of achievement, एक satisfaction, and पता नहीं, there is at least मेरे साथ तो ये है कि after a while it gets really boring for me. ठीक है, and then मुझे वो कोई भी नहीं, जैसे for example I'm a watch collector, तो मुझे वो satisfaction मिलना कम हो जाती है, but then after a few months it comes back. Right. So see, that is something that even if you're an artist, तो उसको creative block type का बोलते हैं. बस वही उसी टाइप. मतलब आप कुछ बना रहे हो, फिर 4 महीने तक आपका सब कुछ एक जगह पे रखा हुआ है, you're not painting, you're not drawing, you're not doing anything. तो उसमें भी इस तरीके से होता है. जैसे मेरा भी होता है, बीच में क्या हुआ था, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो हर टॉय कंपनी को पास करना पड़ता है इंडिया में कार्स लाने के लिए। वो हॉट व्हील्स का पेंडिंग था, उस टाइम पे कोविड आ गया, 2-3 साल तक इंडिया में हॉट व्हील्स आई नहीं। हॉट व्हील्स तो 6 महीने में ऐसा शांति से बैठा कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोर हुआ, imported a lot of them, उसके बाद फिर वो वापस आई। तो वो that is a natural part of it. It's just not कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि लोग ना फेम वगैरह के पीछे ज्यादा भागते हैं। If they start anything, they want it to get famous, they want it to make money. Like if you are starting a YouTube, if I started my YouTube, it was just कि ठीक है मैं गाड़ियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अगर 4 चीजें इनके बारे में दूसरे लोगों को बता देता हूँ तो वो भी चलेगा। लोग करते हैं कि मुझसे में पैसे बनाने हैं, तो वो जब आपके नहीं बनते हैं, लाइक यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके आ ही नहीं सकता if you're doing it from within for your own satisfaction. You're not looking for external validation. As simple. And that is true. Next is, what is your first US collection and do you still have it? That's actually a very interesting one. See, I'll be very honest with you. बचपन के जितने थे ना सब बर्बाद कहाँ गए मुझे खुद कुछ नहीं मालूम है। Later when I started, I think 2013-14, नोएडा में मॉल है अपना GIP, I think it is the Great India Place। उसमें Planet M का स्टोर था 3rd फ्लोर पे। तो उधर मैं गया हुआ था and I found this nice muscle car only. I got that, it had flames and all. और उसमें भी ना हॉट व्हील्स कलेक्शन में भी मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। जैसे कि when that time I got it, मेरे को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो I bought it and I opened it कि मेरे को फिर फोटोज लेनी है, तो दैट वन आई हैव ओपन बट आई स्टिल हैव दैट। बाद में अभी माय करंट सिनेरियो इज कि बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां शेप साइजेस की मैं कलेक्ट करता हूं, तो हॉट व्हील्स को मैं सील्ड रखता हूं, कार्डेड दे आर कॉल्ड इन देयर कार्ड, तो उससे वैल्यू भी इंटैक्ट रहती है, उल्टा बढ़ती ही है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इट्स अ प्रॉपर डिस्प्ले व्हिच आई हैव बिल्ट। सो यू नो आई हैव जस्ट फिल्ड वन रूम, एक पूरी दीवार मैंने हॉट व्हील से भर दी है, अरे वाह, कार्डेड। और फिर साइड में मैंने डिस्प्ले बनाया है जिसमें मैंने अपने लूज वाले रखे हैं जिनको मैंने ओपन किया हुआ है। एंड जो आपके बंद हैं वो ओपन करने का मन नहीं करता? हाँ ये आते हैं बट वही है कि हाँ अभी मेरे पास इतने सारे हो चुके हैं कि जो ओपन है फिर उनसे काम चल जाता है। अभी ऐसा कभी-कभी होता है। आई रिमेंबर there's this Mercedes 190 in the Falcon livery. It's a Hot Wheels, very rare and very expensive also. तो वो कोविड के टाइम में मैं बहुत बोर्ड था तो मैंने उसको ओपन कर ली थी। और कायदे से अगर आप देखोगे तो उतना रेयर कोई ऐसे ओपन नहीं करता है, वो प्रिजर्व करके रखता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये वो बेचोगे या नहीं वो वैल्यू को आप ध्यान देते हो। But I opened it and I don't regret it. It was good fun. At least I'm very grateful कि I had this hobby during that difficult time. जब दुनिया के पास कुछ नहीं था करने को, लोग पागल हो रहे थे, and that was a very good amount of time which I got to spend with my hobby. Photos लिए, that is when I started my YouTube also. तो it was good and मन करता है कभी कभी लगता है कि एक दो खोल लेते हैं। I even did that recently, but that's again you know I just do what I like. I don't think too much about it कि investment के तरीके में do what you like because I'm doing it for myself, not for the value or anything. क्योंकि 100 रुपए की ऑडियंस 1000 की भी हो जाती है तो it's a very good you know return on investment which I'm getting. But ऐसा नहीं है कि उससे आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे इस तरीके से कुछ। तो treat it as a hobby, not as something which will stress you out. Well, that is a message for future collectors. What's your view on failure of Jimny in India and the future of Thar? Yeah, that is something very surprising जो हम लोग सब लोग को लगा था। because Jimny का जब टीजर लॉन्च हुआ था, then हर कोई सोच रहा था कि Jimny is gonna be the next big thing. And of course Thar is 2-door. पेपर पे आप देखें तो Jimny is a 4-door car, off-roader, और इतनी ज्यादा anticipation थी, but still हम लोगों ने देखा कि flop हो गई वो। What do you think about that? क्यों ऐसा हुआ? I think this is a very interesting, curious topic. मतलब you know you need to dive a little deeper into it to understand. First of all, you understand the word Jimny. It's not official, the nomenclature. It doesn't say anywhere कि Jimny stands for mini jeep, but that's what people say. कि Jimny is a mini jeep. That's what it's famous for abroad. 3-door आती है। आप कंट्रीज देखोगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, then Latin American countries and यूरोप, यहाँ पे बहुत पॉपुलर थी। इनफैक्ट यूके में इतनी पॉपुलर थी कि जब नई जिमनी आई थी तो उसको कुछ सालों तक बेचा गया। फिर जिमनी में ना ऐसे आपको कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मिलती है जिसकी वजह से उसके टेल पाइप एमिशंस, कार्बन एमिशंस ज्यादा हैं, उसको रोकना पड़ा यूरोप में। बट वहां पे कैसा है कि लाइट कमर्शियल व्हीकल LCV, इसमें आपको ज्यादा मिलता है कार्बन एमिशंस का लिमिट। मारुति ने, सुजुकी ने, ग्लोबली तो सुजुकी है, सुजुकी ने क्या किया,
उन्होंने पीछे की उसकी 2 सीट्स हटाई, वैसे भी 2 डोर 4 सीट्स थी, तो पीछे की 2 सीट हटाई, मेड इट लाइक अ कार्गो स्पेस, जैसे आपको अपनी इको वगैरह में इंडिया में देखने को मिलता है। ड्राइवर और पीछे एक जाली जैसा पार्टीशन लगा दिया, नेट, ताकि अगर आप उसमें पार्सल्स वगैरह कैरी कर रहे हो, DHL वगैरह यूज कर रहे हो तो सामने ना आ जाए। दैट वाज ऑल फॉर पेपर कि ऑफिशियली मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ लाइट कमर्शियल व्हीकल। उसमें आपको LED हेडलैम्प्स नहीं मिलते थे, उसमें आपको रेडियो मिलता था बिल्कुल बेसिक सा, नो टच स्क्रीन, व्हील्स अलॉयज नहीं मिलते थे, स्टील व्हील्स मिलते थे। अब एक बार जाके देखो वो गाड़ी उस अवतार में इतनी सक्सेसफुल रही यूके में, क्योंकि वहां के लोगों को जिमनी चाहिए, चाहे जैसे मिल जाए। मैं एक तो इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा हूँ, उसके बाद में उसमें उल्टे से पैसे डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप इंडिया में ले रहे हो आपको अलॉयज मिल रहे हैं, वहां पे नहीं मिल रहे, वो खुद से डाल लेंगे, बट उनको चाहिए। दैट इज हाउ मच दे लव द कार। LED headlights, LED headlights, you getting touch screen, तो वो सब। Now let's talk about Indian launch of the Jimny. Indian launch was heavily delayed. 2018-19 की ये ग्लोबल गाड़ी है, द न्यू शेप। इंडिया में 2023 के भी मतलब सेकंड हाफ फाइनेंशियल ईयर में तो खत्म हो गया था, उसके बाद मई जून में आनी शुरू हुई थी, बुकिंग्स वगैरह पहले थोड़ी शुरू हुई थी। उसमें भी द रीजन बिहाइंड दैट हैज टू बी, इफ यू लुक बैक, सुजुकी हैज लॉन्च्ड 2 मेजर ग्लोबल कार्स इन इंडिया, किजाशी, ग्रैंड विटारा, दोनों फ्लॉप रही। मैं ही शादी का अकेला आदमी जिसके पास ग्रैंड विटारा थी। हाँ, great, you had that. Very popular in rallying enthusiasts, and it had a proper 4x4, so it was a very nice car. So I mean, you've got very tasteful cars, I know that for a fact. So But Grand Vitara was not very tasteful. वो पता है क्या होता था कि मैं अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाता था, उतनी में आधी टंकी हो जाती थी उसकी। It was so bad. That time there was the CRV and the Grand Vitara. CRV भी थी मेरे पास। So you had these gas guzzlers. तो उसके बाद अब आप देखो वो दोनों आई, इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल, कि these are not practical, these are not fuel efficient. इंडिया में मारुति has become synonymous with fuel efficiency and all of that. तो उनको ये लग रहा था कि अब I need to modify the car according to the Indian market. पहले बिना मॉडिफाई किए किजाशी या ग्रैंड विटारा डाल दी, वो फ्लॉप हो गई। तो मॉडिफिकेशन उसको इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाने के लिए 5 डोर्स का उनका था कि 5 डोर कर देंगे तो थार में 3 है, मेरे में 5 है, चल जाएगी। टाइम भी बहुत लगा, प्लस तब तक आप देखो रीवैम्प्ड थार आ गई, और रीवैम्प्ड थार हर तरीके से एक मिनी रैंगलर। आपको 15-17 लाख में उसमें एक तो दुनिया भर के इंजन्स मिल जा रहे हैं और ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। आपको पहले तो 4x4 ही मिलती थी, अब तो उसको सिर्फ 2 व्हील में भी दे दिया, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि इंडिया में आधे लोग उससे ऑफिस जा रहे हैं, उससे कॉलेज जा रहे हैं, वो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव, ये वाला क्राउड उसको यूज कर रहा है, वो कभी ऑफरोडिंग नहीं जाने वाला है। क्यों वो फालतू में 4 लाख एक्स्ट्रा देगा उस 4x4 टेक्नोलॉजी का जो उसको प्राइस्ड ऑन दैट। इंजन ऑप्शन आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डीजल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडियन बायर। वो चाहता है कि मेरी गाड़ी में पावर, टॉर्क और मतलब थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले। पेट्रोल थार भी है, पेट्रोल थार में ये है कि महिंद्रा पहले से जो अपनी एक स्पिरिटेड गाड़ियां बनाता था, XUV 500 के टाइम पे, उस टाइम पे उनका आया था लिव यंग लिव फ्री टैग आया था, वो उससे मैच कर रहा था। यू आर गेटिंग अ पावरफुल कार, माइलेज की कोई परवाह नहीं है, शौकीन लोग वो भी ले रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। सॉफ्ट टॉप दे दिया, हार्ड टॉप दे दिया, ऑटोमेटिक दे दिया, मैनुअल दे दिया। उसके बाद आप देखो उसमें भी आपको जो RWD है उसमें भी 2 इंजन अलग अलग दे दिए। यू गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड द बायर हैज समथिंग टू चूज फ्रॉम। जिमनी में व्हाट आई थिंक 3 चीजें जो बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट की जिमनी को। नंबर 1 हैज टू बी पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक जब उस गाड़ी को देखती है उसको लगता है थार चौड़ी है, इट्स मस्कुलर, बड़ी है साइज में। तो इंडिया में वो जो एक रुतबा वाला कल्चर अभी हाल में डेवलप किया है, जिसकी वजह से थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियां चलती हैं, वहां पे जिमनी हार जाती है। जिमनी छोटी बच्ची जैसी, डेंटी, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल लुकिंग क्यूट SUV व्हिच इज वेरी पॉपुलर अब्रॉड, बिकॉज़ पीपल फोटोज में बहुत बड़ी लगती थी वो, फोटोज में बड़ी लगती थी। बिकॉज़ लेंथ आप देखोगे ना 4 मीटर, अंडर 4 मीटर, सब 4 मीटर जो बोलते हैं 3995 मिलीमीटर्स की है, बट चौड़ाई नहीं है। आप उस गाड़ी में भी बैठोगे, आप देखोगे कि चौड़ाई में 2 आदमी पीछे की सीट पे बैठ सकते हैं। इट्स ऑफिशियली अ 4 सीटर। उसकी RC पे भी 4 सीटर लिख के आता है, 5 सीटर वो है ही नहीं। 5वें आदमी के लिए भी पीछे जगह नहीं बचती है। 5 डोर्स थे, बट फिर पावर की कमी लोगों को लगने लगी कि ये SUVs आर सिनोनिमस विद पावर। 100 bhp और
134 Nm के आसपास उसमें आपको टॉर्क मिलता है। सीधा टेक्निकल चीजों में जाएंगे तो उसका जो लाइट वेट है दैट हेल्प्स इट अ लॉट। 500 किलो से भी ज्यादा हल्की है वो थार से। बट एक नॉर्मल आदमी उतना दिमाग नहीं लगाता है क्योंकि उसको हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं करनी है। दे वांट अ लाइफस्टाइल व्हीकल। और वहां पे दे आर सीइंग कि अच्छा थार में पावर भी ज्यादा है, डीजल वाली ले लेंगे, माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा, थोड़ा उसका एक रोड प्रेजेंस भी है। रोड प्रेजेंस जिमनी का भी है बट दूसरे टाइप का। जैसे आप वो काइनेटिक येलो जो उसका कलर है बहुत ब्राइट है, आप लेके जाओगे 10 लोग जरूर मुड़ के देखेंगे। और थार को आप एक गली में लेके जाओगे ना, वो सब लोग ऐसे मतलब डर जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी आ गई है। दैट्स वेयर आई थिंक वहां पे वो हुआ। प्राइसिंग वाज अनदर वेरी, आई डोंट वांट टू यूज बैड टर्म्स, बट हाँ अच्छी प्राइसिंग नहीं रही जिमनी की। उनको लगा इंडियन मार्केट में डिमांड है, बुकिंग्स आ गई हैं, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे प्राइस कर दिया। उससे क्या हुआ, बहुत सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई। जो अर्ली अडॉप्टर्स थे जिनको जिमनी पसंद थी, जैसे अगर आपको जिमनी पसंद है नो मैटर व्हाट इट इज, आप जापानीज कार्स के एंथुसियास्ट हो, आपको चाहिए थी, बहुत सारे लोग थे जिनको जिमनी चाहिए थी, कुछ लोग इंपोर्ट कराने का भी सोचते थे, इतने लोग जिमनी के दीवाने थे, जिमनी के लोग बहुत एक्साइटेड थे। तभी तो ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। तो अब वो जब आ गई, प्राइस देख के आधे लोगों ने कैंसिल कर दिया, बोला चाहिए ही नहीं। 17-18 लाख वो छोटी सी गाड़ी में मेरे को नहीं डालने उस प्राइस में। उस टाइम पे क्रेटा, आपकी ये स्कॉर्पियो एन का Z4 या Z2 ये सब जो मॉडल्स आते हैं नीचे वाले वो आ रहे थे, अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही थी फुल साइज। एंड स्कॉर्पियो इज फुल साइज, इवन क्रेटा इज अ बिगर देन जिमनी। देन मारुति pulled another stunt. What they did was they dropped the price. दिसंबर में डिस्काउंट दे दिया। अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर 4 आदमी को रेकमेंड करता वो भी भड़क गया। वो बोला भाई मैं तुमसे इतना दुखी हो चुका हूं, मैं तुम्हारी गाड़ी किसी को नहीं रेकमेंड करने वाला हूं। आप उसको गाड़ी दे रहे हो 17 लाख की, सेम गाड़ी आप दूसरे आदमी को दे रहे हो 16 लाख 15.5 लाख। वो उसको एक टाइम पे ऐसा पहले भी हो चुका है। एस क्रॉस जब आई थी, एस क्रॉस में भी ऐसे प्राइस ऊपर नीचे किया था, उस टाइम में मारुति ने थोड़े रिफंड्स दिए थे जिसकी वजह से लोग थोड़े शांत थे। इस बार उन्होंने वो भी नहीं, ऑफर भी नहीं किया। So they were aggrieved, and that led to no referrals. कार जो इंडियन मार्केट में है वो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत बिकती है। आपने ली, मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि माहिर भाई वो कैसी चल रही है, कैन यू टेल मी इफ आई शुड गेट इट, इफ आई गॉट दैट बजट। जिमनी के ओनर्स खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं भाई मत ले। तो नाउ दैट यू लुक एट द होलिस्टिक पिक्चर, यू विल रियलाइज कि एक तो बहुत लेट लॉन्च किया, जितने उन्होंने अपने इस पे मॉडिफिकेशंस पे लगाया था दाव कि हाँ ठीक है 5 डोर 5 डोर कर देंगे तो चलेगी, वैसा भी कुछ खास हुआ नहीं। इक्विपमेंट की भी थोड़ी कमी रहेगी। आप अगर इक्विपमेंट पे लड़ रहे हो थार से, आप बोल रहे हो कि मेरी गाड़ी ज्यादा फीचर्स वाली है, 360 डिग्री कैमरा भी नहीं है। ऑफ रोडर में 360 डिग्री कैमरा बहुत जरूरी होता है, दे देते। यहाँ तक कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं दिया। तो वो सब चीजें मतलब कॉस्ट कटिंग्स हो गई। थार में तो है, थार में है एग्जैक्टली। तो वहां पे भी वो फिर जिमनी से लोग थोड़े दुखी हो गए। सो ओवरऑल दैट इज व्हाट आई थिंक दीस आर द बेसिक पॉइंट्स। और थार की वही बात है कि थार देखिए, थार हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल नो मैटर व्हिच वर्जन हैज बीन इन इंडिया। प्रेजेंटली इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। वेटिंग आप उसकी देख लो, प्लस सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। सेफ्टी महिंद्रा की सर्टिफाइड 4 स्टार है। जिमनी फील्स बेटर देन अदर मारुति कार्स, इट फील्स सॉलिड, बट वो फीलिंग नहीं आती है उसमें कि हाँ शायद 4 हो कि 5 हो। कॉन्फिडेंस लोगों को कम आ रहा है, जबकि थार में अभी फाइबर की छत है, इसमें मेटल की छत है, फिर भी कॉन्फिडेंस थार पे ही ज्यादा है लोगों का। जिमनी इज आल्सो गुड, आई वुड से कि रोड मैनर्स उसके बहुत अच्छे हैं। सस्पेंशन उसका जो इतना अच्छा है, आप बहुत हाई एंड एसयूवीज में चले जाओगे, जो राइड क्वालिटी वो ऑफर करती है वो आपको जिमनी ऑफर करती है। तो इट्स नॉट अ बैड कार, बस इंडियन मार्केट में आई बिलीव दीस आर द मेन रीजंस व्हाई। अच्छा, आपका इसका क्या कहना है इस चीज के बारे में कि थार ने, महिंद्रा ने जीप को, रैंगलर को पूरा कॉपी करके थार बना दिया, ठीक है? इसके बारे में क्या कहना है? व्हाट आर यू व्यूज ऑन दैट? See, these are not mine or your views. If you look at the history, ऑस्ट्रेलिया में XUV 700 और स्कॉर्पियो एन बिकती है, थार नहीं बिकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जीप ने उनको प्रॉपर एक नोटिस दे दिया कि आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बहुत ज्यादा सिमिलर है। So वो रॉकस्टार और क्या जो हुआ था चल रहा है, यूएस में था रॉकस्टार वाला। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी ऑस्ट्रेलिया में दे हैड फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस। स्कॉर्पियो वाला और XUV बिक रही है, इसको बिकने का क्लियरेंस ही नहीं मिला। सो नाउ दे हैव टू रीडिजाइन द फ्रंट फेशिया कि वहां के लिए उसको कंपैटिबल कर सके। तो कुछ तो उन्होंने किया ही है।
बहुत ज्यादा किया हुआ है, लाइट्स पीछे की हो गई, इंटीरियर हो गया, सबका सब एंड हो देन गया। यू लुक एट इट, वो तो बस शुरुआत है। हाँ। उसके बाद अपना करोल बाग जिंदाबाद जो जो नहीं है, वहां पूरी पे तो जीप आप वहां पे तो आप पूरी बैजिंग लगवा दो रूबिकॉन की। और पूरी जीप की ग्रिल ही सब लगा देते हैं निकाल के हाँ उसमें। वही तो, इसलिए ये भी है कि आफ्टर मार्केट सपोर्ट थार का बहुत अच्छा है इंडिया में, हाँ। तो उसकी वजह से वो आप देखोगे ना। बट देन एथिकली क्या लगता है कि इन लोगों को करना चाहिए था ये, मतलब एग्जैक्ट रूबिकॉन को छोटा कर दिया इन लोगों ने। आई थिंक सी इवन इफ यू लुक एट द अर्लियर रूबिकॉन क्या मतलब, वही रैंगलर, आई मीन। हाँ। इवन इफ यू लुक एट द थार अर्लियर, जीपिश उसमें हमेशा से महिंद्रा का जो कि वो जीप वाला एक एलिमेंट रहा है। तो और इंडिया में भी जीप एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया में दे हैव द कॉपीराइट फॉर दैट डिजाइन बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर एबल टू स्मोक। जीप का सिग्नेचर होता है 7 स्लैट ग्रिल। आई थिंक इसका शायद एक कम या ज्यादा होगा, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट आइडेंटिकल, बट लुक्स में बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो उसपे वो खेल रहे हैं और नो वन हैज बीन एबल टू डू मच अबाउट इट, और पीपल आर रियली एंजॉयिंग दैट कि मुझे सस्ती रैंगलर मिल जा रही है। और एक टाइम तो ऐसा था कि जब रैंगलर वगैरह उतनी अच्छी थी भी नहीं, जैसे रूबिकॉन वगैरह में बहुत इंप्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा कुछ बदल दी गाड़ी। उसके बाद पहले उतना लोग सेटिस्फाइड भी नहीं थे, तो उनको लगता था कि ठीक है, even if I spend that much I won't get as good a car as I'm getting for 140। मेरे पास पता है इसके पहले वाली रूबिकॉन भी थी, मैं अनलिमिटेड थी मेरे पास इसके पहले, The V6 अब V6 पेट्रोल वाली तो हाँ 3600 तो उसमें क्या था, उसमें तो कैमरा भी नहीं था। हाँ ठीक है, थार में कैमरा था, राइट, उसमें जो है पार्किंग सेंसर्स भी नहीं थे, Right. थार में वो भी थे। Right. उसकी राइड क्वालिटी इतनी खराब थी, हाँ. थार की बेटर थी, और प्लस उसमें इतने ब्लाइंड स्पॉट्स थे। मैं जब भी गुड़गांव हरियाणा वहां चलाता था, कितनी बार होता था कोई बाइक वाला मुझे कहता था देख नहीं रहे थे क्या। that is actually very So relatable। of course आदमी ये कहेगा मैं थार ले लूं। So we used to drive around in the unlimited in Delhi that time। तो उस टाइम पे क्या होता था कि when you cross someone, तो एक झलक में थार लगेगी, अभी भी लगती है उधर रूबिकॉन और सब लगती है। then you साइड एंगल जब प्रोफाइल उसका नजर आएगा, बोलेगा 5 दरवाजे। वो तब देखेगा, बोलेगा नहीं नहीं ये थार नहीं है, कुछ और है। मैं तो वैसे ही बता पाता हूँ डिफरेंस। हाँ, अब जो थार में और इसमें रूबिकॉन में। so no I mean see the Rubicon, the Wrangler Unlimited which you are talking about, उसमें ट्रांसमिशन वगैरह भी actually that was a very dated car। अभी Rubicon में बहुत ज्यादा revolutionary improvements लाए गए हैं। The car which you are talking about, वो 2004-5 से जो गाड़ी चल रही थी वही चले जा रही थी with minor upgrades। So even if you look at the engine, proper American engine था उसमें, it had that वो 4-5-6 का माइलेज देती होगी पेट्रोल वाली। Since you had it, you can verify। अभी भी वही देती है, अभी भी रूबिकॉन का भी वही हाल है, पेट्रोल वाली। और प्लस लिफ्ट कराई हुई है तो इट इज मतलब वेरी बैड, बहुत गंदी एवरेज है, 3-4 की आई थिंक। राइट, सो दिस इज अनदर थिंग। जिमनी की समय हम लोग बात कर रहे थे ना, तो जिमनी में ये भी हो जाता है कि जिमनी में ना यू कैन नॉट पुट टू मेनी मॉड्स, इंजन का पावर नहीं है उसको हैंडल करने का। रूबिकॉन वगैरह इट्स वेरी बिग बल्की बड़ा इंजन है, तो वो आप सब करने के बाद भी कम से कम गाड़ी चल रही है अच्छे से, यू गॉट दैट। जिमनी में आप रूफ रैक लगाओगे वेट ऐड होगा, और लाइट वेट ही उसका यूएसपी है। लैडर लगाओगे वेट ऐड होगा, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। चौड़े, अच्छा ये उन लोगों की शिकायत है कि जिमनी के टायर्स बड़े पतले हैं। वो चौड़े टायर्स देंगे, वो रोलिंग रेसिस्टेंस जो होता है, जितने चौड़े आप टायर दोगे उतना ज्यादा आपको रोलिंग रेसिस्टेंस मिलेगा। और मारुति के मन में ये है कि इंडिया में अगर मैंने गाड़ी लॉन्च की है तो ऑन पेपर एटलीस्ट मुझे माइलेज दिखाना है। वो चाहती है कि माइलेज के भरोसे ही 4 कस्टमर उसके पास चला है। So I think that is also there। So what do you think? Why Ford Motors leave India? Why Ford left India? Yes. I think so interestingly I've had one of the initial Fords, the Fiesta। So see, it was a good car, and Ford, even as a friend, I've got a lot of people when they are buying cars, जब वो गाड़ी खरीदते हैं एक बार वो मैसेज डालते हैं कि tell me which car should I buy। And 2017-ish I had at least 2 friends जिनको मैंने Fortuner से Endeavour पे शिफ्ट करवाया, because I just told them कि and they're very happy with it। जाने के बाद भी आज तक मुझे एक कंप्लेन नहीं आया कि बहुत ज्यादा मेरा मेंटेनेंस हो गया है इस तरीके का। सो द कार्स वर रियली गुड। अब फोर्ड के जाने के 2-3 जो मेन रीजन है, सबसे पहले आप देखोगे कि फोर्ड की इंडिया में जो गाड़ियां आ रही थी, जैसे मारुति है वो अपनी गाड़ियों को थोड़ा ट्वीक करके ला रहा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। फोर्ड अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स को ला के यहाँ बेचना चाह रहा था, काफी हद तक सक्सीड भी किया विद द इको स्पोर्ट। मस्टैंग से भी बहुत हुई थी, मस्टैंग वाज नेक्स्ट लेवल। इको स्पोर्ट वाज मस्टैंग में वही था ना कि आप बेच रहे हो, टैक्स उसमें बहुत लग रहा है आपको, तो फोर्ड वाज नॉट अर्निंग अ लॉट, बट इको स्पोर्ट वगैरह
जो मास मार्केट कार्स थी उसमें वो आपको पैसे बना रहे थे। इको स्पोर्ट बेची उसने, बहुत बेची, इनफैक्ट इट वाज द सेगमेंट लीडर, सब 4 मीटर प्रॉपर एसयूवी जिसमें पीछे टायर देखने को मिलता था। इट हैड अ वेरी नाइस लुक और इनिशियली जब आई थी लोगों ने बहुत पसंद किया। फोर्ड फीगो आई, फोर्ड फीगो भी इट वाज अ नाइस हैचबैक, बट वो ये कि परफॉर्मेंस उसमें ज्यादा था, फीचर्स थोड़े कम थे, और लोगों को यहाँ माइलेज और फीचर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान जाता है परफॉर्मेंस से, बिकॉज ड्राइविंग enthusiasts like us are maybe little less in the real world. They care about more other things. दो चीजें थी. I think probably the only car which Ford really looked to modify for India was the Aspire. Figo को ऐसा Desire जैसा जो उसने वाला वर्जन निकाला था, that was the Aspire. But that was too late. तो एक तो वो हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो इंडियन कस्टमर्स को बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है। EcoSport में भी there was this one gem of an engine, EcoBoost, the 1 liter turbo. पेट्रोल वाला। Yeah, I had that one. So see, that's what, मतलब वो enthusiasts ने लिया, पब्लिक उसको समझी नहीं ढंग से। तो वो था कि जैसे आपने लिया तो I'm sure you had other options also at that time, but आपको नहीं, actually my sister bought it, और हम सब लोगों ने मेरी सिस्टर को बहुत सुनाया था इस चीज के ऊपर कि तुमने इतना ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी ली है। एंड उसमें वो एकदम होती ना, जो एकदम एक्सट्रीम ब्लू जो था, एकदम डार्क ब्लू कलर का वो वाला था, तो दूर से दिख जाती थी वो गाड़ी। So that is what at that point it was a very novel product. उसी पे थोड़ा कैपिटलाइज करते, उसी के 2-3 मतलब अपडेट्स देते रहते, उसको भी अपडेट्स दिए, बाद में अच्छे अपडेट्स दिए थे, सनरूफ वगैरह भी डाला था, पर उस टाइम तक देर हो गई थी। और मस्टैंग आई, शेवरोले उस टाइम तक जाने लगा था, तो कैमेरो आने वाली थी पर आई नहीं थी, तो मस्टैंग इसलिए भर के बिकी। वो ये कि मस्टैंग वगैरह भी वो सस्टेन नहीं कर पाए। आज भी अगर वो मस्टैंग बेच रहे होते ना, आप जाके चेक करो जितने भी आपके क्लासिफाइड्स हैं, सेलिब्रिटीज में 2022 के बाद मस्टैंग पॉपुलर हुई है। फोर्ड बेच के 2019 तक चला जा चुका, तो वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया ना। आज अगर फोर्ड होता, वो खुद ही उसको बेच रहा होता, वो खुद ही उसके प्रीमियम में बेच रहे हैं सब। आई थिंक कितने 75 वगैरह 80 तक में आपके ऑन रोड आ जाते हैं, 1 करोड़ तक में आपको मिल रही है, 1 करोड़ की मिल रही है अब तो, सेकंड हैंड, वो भी कितने साल पुरानी, लॉट्स ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन। सो वहां पे भी नुकसान ही हुआ। और एक जो एटीट्यूड भी होता है, जैसे उन्होंने एक प्लांट लिया था, वो प्लांट में सोच रहे थे कि बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, फिर बाद में उसको भी वो दे गिव अप ऑन दैट। एंडेवर वगैरह चली, बट एंडेवर में भी दे नेवर समहाउ मैनेज दो सेल्स, हमेशा वो लॉस में रहते थे। डीलर नेटवर्क भी पुअर था, सर्विस नेटवर्क भी पुअर था, जो लोग ले रहे थे उनको भी कभी इश्यूज आते थे, बहुत ज्यादा रेफरल्स भी नहीं थे। जैसे आप एंडेवर ले भी लोगे, आप बोलोगे बहुत अच्छी गाड़ी है, कितने लोग हैं आपके आसपास जिनके पास उतने पैसे हैं उस गाड़ी में डालने के लिए। सो And most importantly what happened was कि इंडियन मार्केट का जो कंज्यूमर था उसकी प्रायोरिटीज और फोर्ड की प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा कभी मेल खाई नहीं। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा गिविंग अप वाला एटीट्यूड रहता है। अमेरिकन कंपनीज आप देखो, जीएम भी गई, फोर्ड भी गई, सो दे ट्राइड देयर बेस्ट। शेवरोले भी स्पार्क बेची थी, बीट बेची थी। ऐसा नहीं है कि इनकी सेल्स आपको जीरो नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे। फिएस्टा आई थी, फिएस्टा बिकी थी इंडिया में, और वो अभी जो आप देख रहे हो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक, शुरू इसको फिएस्टा ने किया था, जब उसने नई फिएस्टा भी ले आई थी और पुरानी वाली को फिएस्टा क्लासिक का नाम दे दिया था। तो कोशिश उन्होंने की, बट somehow it didn't work out for them. और तीसरी अमेरिकन कंपनी टेस्ला तो आ ही नहीं पाई। They made it very clear कि मतलब हमारा वो मार्जिन बैठ नहीं रहा है। So people are very curious about Tesla, what I'm seeing. क्या EV सक्सेसफुल होंगी लॉन्ग टर्म, या फिर is there any alternative? See, EVs again a very vast topic. If I just start to explain it to you, बहुत ही simple terms में, EVs को जब लोग देखते हैं, I'll tell you why I like EVs personally. Why I like them is they've made performance very affordable. आपको 4 सेकंड 5 सेकंड में 0 to 100 करने वाली गाड़ी के लिए पहले कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? अब तो BYD जैसी 52 में ही आपको मिल जा रही है, कर रही है। EV6 also very good। EV6 फिर भी 70-75 की होगी ना, 60-70। हाँ, मतलब थोड़ी महंगी है कि these are all within that 70 mark and they got great performance। एक तो performance affordable कर दिया। Secondly, as a city car, I don't think anything beats it। सही बात। I love my EVs। You got a couple of them। Comet है मेरे पास और Nexon है। Right। हाँ। Comet is a proper toy। Now see, Comet से ही ना main problem इंडिया का क्या है कि you always need an EV as a secondary car। हाँ। Unless and until आपके दिमाग में फिक्स है कि I'm going to use it in the city, कहीं भी मुझे बाहर जाना है, ट्रेन, बस, फ्लाइट चल जाएगा।
नॉर्मल एक आदमी बहुत पूरी जिंदगी पैसे जोड़ के 10-15 लाख अपने जोड़ता है, उसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए कहीं जाना पड़े वो गाड़ी में जा सके। उसके पास ये लग्जरी नहीं है 4 गाड़ी रखने की कि वो एक ईवी में ऑफिस जाए, वो एक एसयूवी में मतलब ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, एक उसके पास ऐसे ऑप्शंस उनके पास होते नहीं है। तो ईवी सेकेंडरी कार मार्केट में मतलब जिनके पास एक गाड़ी पहले से वो आप देखोगे अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर वो वाले लोग जिनको भी मालूम है कि ठीक है मुझे ऑफिस से घर से ऑफिस मेरा काम चल जाएगा। अब ईवीज में भी ना आप देखोगे जो उनकी बैटरी होती है लिथियम की, दैट्स नॉट एज ग्रीन एज पीपल थिंक। 1 टन लिथियम बनाने के लिए 2 मिलियन लीटर्स वाटर लगता है ऑलमोस्ट। तो उसका जो बैक एंड का प्रोसेस है, आप बिजली से चार्ज कर रहे हो, अगर आपकी बिजली कोयले से बन रही है तो वो ज्यादा पोल्यूट कर रही है। बट ईवीज दिल्ली जैसे शहरों में बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि वहां पे आप तो दिल्ली रहते हो, एनसीआर, साल के 100 दिन तो ऐसे होते हैं जब 20 फीट से ज्यादा विजिबिलिटी होती ही नहीं है स्मॉग की वजह से। ट्रू। वहां पे इंडस्ट्रीज तो बहुत कम कर दी गई हैं। मेन जो आपके पोल्यूटेंट्स बच रहे हैं, देयर आर दीज टेल पाइप इमिशंस जो गाड़ियां वो कर रही हैं, इसीलिए ऑड इवन जैसे स्कीम्स भी आए थे, उसको ये खत्म कर देगा। पोल्यूशन हो रहा है, लिथियम बनाने में लग रहा है, बट वो कहाँ लग रहा है, दुनिया के किस कोने में, और वो इनहैबिटेबल जगह है कि नहीं है, कि वो रेगिस्तान के बीच में माइन निकला है, वहां पे पोल्यूशन हो भी रहा है तो उतना ज्यादा शायद इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में आती है। शहर में जहां आप रह रहे हो वो टेल पाइप इमिशन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई यू विल सी, जब दिल्ली वगैरह में लॉकडाउन लगा था 2 महीने कोई घर से निकला ही नहीं गाड़ियां लेके, ट्रैफिक नहीं था, वो AQI इतना तेजी से इंप्रूव किया, बहुत ड्रास्टिकली नीचे आया था। इसलिए अभी भी आप देखो 2030 तक 30% ईवीज वाला है एक टारगेट की, 2030 तक 30% कार्स हम लोग को रोड पे ईवी ला देनी है। आई थिंक हो जाएगा तब तक। हाँ, बिकॉज पीपल आर अडॉप्टिंग वो। उसमें फिर देखो आप ये जो सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट जो आपको फायदे दे रही है, उसकी वजह से ईवीज अफोर्डेबल हो रही हैं। इफ यू लुक एट द फॉरेन मार्केट, आइस दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, उसके बाद हाइब्रिड, उसके बाद ईवी। इंडिया में आइस टू ईवी का जंप, क्योंकि हाइब्रिड में कोई ऐसी सब्सिडी मिल नहीं रही, तो हाइब्रिड्स आई हैं, हाइब्रिड पीपल अडॉप्ट भी कर रहे हैं, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें आपको आप देखो ऐसे कायदे से अगर आपको उतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो गाड़ियां 5-5-6-6 लाख और महंगी हो जाएंगी, जो अभी नहीं हो रही है। हाइब्रिड फॉरेन में ज्यादा चल रही है। टोयोटा जैसी कंपनियां देखो कि टोयोटा की एक भी ईवी नहीं है इंडियन मार्केट में, और उसका मेन रीजन ये है कि they follow this 1-6-90 philosophy. 1 EV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV, उसको बनाने में जितने रिसोर्सेज लगते हैं उतने में आप 6 प्लग इन हाइब्रिड बना सकते हो, और 90 नॉर्मल हाइब्रिड बना सकते हो हाई रेटेड टाइप में, जिसमें छोटी बैटरी लगती है, अपना ये 2-3 किलोमीटर का जो ऑल इलेक्ट्रिक रेंज देती है उस टाइप का। प्लग इन हाइब्रिड आई थिंक इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, कि आपको अगर कहीं दूर जाना है तो आप अपना इंजन और उसके कॉम्बिनेशन से जाओ, सिटी में चलना है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज से आप उसमें 50-55 किलोमीटर में चलने वाली गाड़ियां आजकल आ रही हैं। इंडिया में वो अभी प्लग इन हाइब्रिड्स का नहीं आया है। आई थिंक दैट इज वन वेरी रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। नॉर्मल हाइब्रिड्स भी हैं, बट वो ये कि नॉर्मल हाइब्रिड्स में आपको दाम भी देना पड़ रहा है। टोयोटा की ही मेन कैमरी आ रही है, वेलफेयर में भी आती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसके बाद अपनी ये हाई क्रॉस, हाई राइडर, ये सब में ऑलमोस्ट सब में आजकल वो दे रहे हैं। वही हो जा रहा है कि लोग अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि महंगे हैं वो तो। अच्छा, इसी के ऊपर ऐसे ईवीज और इन सब बात करने में स्पोक अबाउट टेस्ला आल्सो, क्या आपको लगता है कि इंडिया में कभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ पाएंगी? सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर बेसिकली व्हिच असिस्ट यू व्हाइल ड्राइविंग। तो या तो खुद से चलती हैं, जैसे मैं यूएस में था तो मेरे मामू के पास टेस्ला है, वहां पे मॉडल ई, मॉडल ई है उनके पास, मॉडल ई, मॉडल 3, मॉडल वाई सॉरी, जो एक्स की तरह लगती है, वो छोटी है साइज है। हाँ, मॉडल वाई। तो हम लोग उसको सेल्फ ड्राइविंग पे चलाते थे, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, वहीं की जगह है, वहीं की कंपनी एंड एवरीथिंग, पर फुल सेल्फ ड्राइविंग में हम लोग चलते थे। एंड इट इज नेक्स्ट लेवल। वो नोवेल्टी एक जब चालू होती है ना, फिर स्टार्टिंग में डर लगता है कि ये गाड़ी जो है लड़ जाएगी, कुछ पता नहीं, खुद से ही चला रही है। आप घर से निकल रहे हो, गाड़ी खुद से चलना चालू हो जाती है, कहीं भी चले जाओ खुद सेल्फ ड्राइव। मैं पूरा लॉस एंजलिस तक हम लोग गए थे, अराउंड काफी देर का रास्ता था, एंड वो खुद पूरा चलते हुए पहुंचाई थी। बीच में हम लोग एक जगह सुपर चार्जिंग स्टेशन पर रुके थे। तो क्या आपको लगता है ये फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंडिया में आ पाएंगी कभी?
See, I mean, if you've experienced it at this level first hand, I'll just tell you कि आपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का जो गैप है वो भी एक्सपीरियंस किया है. एंड इंडिया में देखो अभी वो वी आर एट दैट स्टेज वेयर वी आर गेटिंग द ADAS जैसे आप उसको बोलो, दैट इज द एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम. वो क्या है कि ड्राइविंग एड्स हैं, लेन असिस्ट, गाड़ी आपकी लेन में रहेगी, रडार लगा हुआ है सामने, अगर कोई गाड़ी चल रही है उसको सेंस करेगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो अगर आगे वाली स्पीड अप की करेगी तो आपको करेगा, नहीं तो वो ब्रेक लगा देगा, ब्रेकिंग असिस्ट. ये सारी चीजें आपको इंडिया में मिल रही हैं अभी. फिर अब ये भी देखो, YouTube पे आप जाओ, लिखो XUV 700 ADAS, 10 लोग मिलेंगे जो पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, गाड़ियों की खुद से चल रही है. होते हैं सर. तो इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये लाना पहले ज्यादा जरूरी है. अगर वो आ जाती है तो ज्यादा खतरा है हम लोग के लिए. देखिए मैंने जिसमें एक आदमी चला के कूद के पीछे. So that is what I think. I think इंडिया में आ सकती है. If you look at it, if you travel to Delhi or somewhere, you look at the road, अभी सारे एक्सप्रेसवेज इतने अच्छे बन गए हैं, सब कुछ बन गया है. So it's going to be. I think लिमिटेड कैपेसिटी में तो आ ही सकती है. I think 4 to 5 years में ये लोग कुछ ना BYD टाइप की कंपनी तो कर ही देगी कुछ ना कुछ. हाँ, जैसे फॉरेन में आप देखो BYD अपना ये टेस्ला से डायरेक्टली कम्पीट करने लग रही है. They are just directly competing. तो they have to offer that kind of features to say कि नहीं बराबर हूँ. नहीं तो वही हो जाता है कि ये सब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं कि पीपल विल से उसमें तो ऑटो पायलट है, तुम्हारी गाड़ी में नहीं है, तो आई प्रेफर दैट. सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कैच अप. अच्छा, इसी BYD की हमने बात की. एज एन इंडियन आपका क्या कहना है BYD टाइप की चाइनीज कार्स पर, जो चाइनीज कार्स यहाँ बिक रही हैं? See, now this has two angles. One is from the automotive angle and one is from the patriotic angle. Automotive तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. It's next level जैसी गाड़ी इन्होंने BYD टाइप की गाड़ियां जो आ रही हैं. Exactly. Now if you look at it, MG का भी जो parent है, that is SAIC, Shanghai Automotive. So that is also Chinese. ये conscience तो clear हो जाता है ना. मैंने ब्रिटिश गाड़ी ली है. I mean you know it is a Chinese car. Gloucester, they have the British engineering वाला badge. Because they also realize कि ये एक बहुत बड़ा obstacle है हमारे लिए इंडियन मार्केट में. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब ठीक है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, आई एम श्योर. और फॉरेन में वो चल भी रहा है. इफ यू लुक एट इट, अमेरिकन्स आर सेइंग कि इंडिया इतनी सारी गाड़ियां चाइनीज आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी डेवलप हो चुके हैं, हवल ये जो हर जगह बेच रहे हैं. इंडिया में वो तो है, जैसे BYD वगैरह की एक दो गाड़ियां दोनों ही मैंने देखी थी, सील से पहले वाली जो दोनों थी, E6 और Atto 3. तो उसमें कमेंट्स आते हैं चीनी कम. लोगों में है अभी कि नहीं, वी आर नॉट वेरी विलिंग टू सपोर्ट, और उसकी वजह से आप भी जानते हो रीजंस रहे हैं. बट एज अ कार ऑटोमोटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने बोला कि दे आर फैंटास्टिक, फिट एंड फिनिश अच्छा है, एंड दे आर गोइंग टू रियली चैलेंज द इंडियन एंड कोरियन एंड जापानीज कार मेकर्स इन इंडिया कि या तो तुम इनोवेट करो या फिर हम आके टेक ओवर कर लें. दैट इज आई थिंक अ लिटिल बिट पॉजिटिव कि एक खतरा है उनके मन में कि अगर हमने टाइम पे इनोवेट नहीं किया, अगर हमने इंडियन कंज्यूमर को टाइम पे अच्छी चीज नहीं दी, दे विल नॉट हेजिटेट. आप देखो, ये तो गाड़ियों की बात कर ली हमने, गाड़ियों वाले कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा है, सब कुछ है, और BYD महंगी भी आ रही है, इसलिए लोग 4 बार सोच रहे हैं. फुली इंपोर्टेड आ रही है, कुछ यहाँ बन भी नहीं रही अभी तो. फॉरेन मतलब आप ये 100 लोगों में से 90 लोगों का फोन आप चेक कर, कौन से ब्रांड्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स सब चाइनीज. तो कंज्यूमर को जब वैल्यू नजर आता है ना, तो पेट्रियोटिज्म को भी साइड कर देता है. एकदम सही बात बोल रहे हैं. वो उसको भी वैल्यू नजर नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है, अभी कॉमेट की बात कर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड कार, इवन इफ पीपल नो कि इट्स फ्रॉम देयर. अब भी उसका मेन प्रॉब्लम है कि खिलौना बोलते हैं लोग उसको, कि खिलौना है, छोटा है, इट्स अ सेकेंडरी कार. बट वही उसी टाइप का कुछ आपको टियागो टाइप के फॉर्म में मिल जाएगा, व्हिच इज अ हैचबैक. वो क्वार्टर साइकिल लगती है कॉमेट, टियागो थोड़ी हैचबैक वाली फीलिंग देती है, इसलिए आप प्रॉपर कार वाली फीलिंग, कॉमेट में प्रॉपर कार वाली फीलिंग साइड करके थोड़ा आपको मौका देते हैं. इफ यू एक्ट ऑन इट, होने हुए आप देख लो, मारुति वाज वेरी डीप इनटू द सेगमेंट व्हेन Hyundai came. Kia very late entrant. Look at the performance of Kia cars. So people are very open minded that way, I think, especially while buying cars. पर एक कॉन्शियस वाली बात भी तो होती है कि यार मैं चाइनीज गाड़ी खरीद रहा हूँ. एटलीस्ट फॉर इन माय ओपिनियन द रीजन मैं कभी BYD या कहीं BYD मैं बहुत बार ट्राई लिया BYD का. रियली लव दैट कार, आई लव सील. एंड बट देन कभी वो कॉन्शियस मानता नहीं कि मैं shamelessly पूरा वो
चाइनीज गाड़ी ले रहा हूँ. I think दैट इज वन थिंग जो मुझे लगता है. no, that actually makes sense, not just for you or for a lot of people. Because the thing is वही कि अभी आप देखो सील पे आप इतना खर्चा कर रहे हो, मान लो आपको कुछ चाहिए ही तो प्लस Hyundai की Ioniq 5 and Ioniq 5 जो है आपकी या फिर आपकी ये Kia की EV6, तो मतलब कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास. मान लो आपका बजट भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, फिर भी आप बोलोगे कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके मैं कुछ और ले लूँगा. तो कॉन्शियस वाली बात ही ज़्यादा प्ले कर रही है जिसकी वजह से अभी वो नहीं है. बट आप देखो ब्लू स्मार्ट करके एक कंपनी है, मैं वही वाली कैब लेता हूँ. वो took the cab from MG. हाँ MG से भी ली गई और इनके पास जो टियागो है. ये भी है, BYD भी है. अच्छा BYD. हाँ, they have the E6 है BYD की. BYD E6 है. That was one of the first times I saw BYD. और उस टाइम तक if I'm very honest मुझे नहीं मालूम था कि E6 और Atto अलग अलग कार्स हैं. जब मैंने E6 देखी तो मैं बोला इसमें वो गिटार स्ट्रिंग्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं. Then later I got to know कि अच्छा there were two offerings. One is purely commercial and the other one is थोड़ा अपना जो affluent stylish लोगों को टारगेट करता है. But fit and finish वगैरह अच्छा है. It's an interesting car. प्लेटफॉर्म पे बनी है, 5 स्टार रेटेड है. आई थिंक बट द चाइनीज फैक्टर इज गोइंग टू प्ले. इट्स ऑलरेडी प्लेइंग. वो 3-4 सालों से है कंपनी, कोई खास उसका ऐसे हमें नज़र नहीं आया है. रोड पे भी आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगी शायद. दिल्ली गुड़गांव में मेरा घर गुड़गांव में भी है. सो आई कीप गोइंग द वेरी ऑफन. माय वाइफ इज आल्सो फ्रॉम फरीदाबाद. तो मैं वो गुड़गांव फरीदाबाद का जो स्ट्रेच है वहाँ बहुत जाता है. ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग एक बार ट्रैवल करते हैं. तो इतनी सारी BYDs मुझे दिखने लगी है. Atto 3 सील तो मुझे 2 या 3 ही अभी देखिए, अभी तो लॉन्च हुई है. एक्सपेंसिव भी है. एक्सपेंसिव भी और अभी लॉन्च हुई है. पर Atto 3 आई एम नॉट किडिंग यू, एवरी 6th कार इन दैट स्ट्रेच, ऑन दैट स्ट्रेच इज अ BYD Atto 3. इतनी सारी हो गई Atto 3. मेरी वाइफ के जो नेबर्स हैं, जो मेरी वाइफ जिनका फरीदाबाद में घर है उनका, तो उनके जो नेबर्स हैं फरीदाबाद वाले, उनके पास भी Atto 3 है और उन्होंने सील भी ऑर्डर की हुई है. कौन सा कलर है ये Atto 3 का? वो वाला जो ब्लूइश जो कलर होता है ना, वो वाला है उनके पास. इट्स अ वेरी नाइस लाइट कलर. और मैंने उसी की Atto 3 बहुत बार चलाई है. गुड परफॉर्मेंस. गाड़ी अच्छी है, प्लस वो फ्यूचरिस्टिक है. अभी जैसे आज आप देखोगे तो फिर भी शायद आपको उतनी फ्यूचरिस्टिक ना लगे. जब वो लॉन्च हुई थी, स्क्रीन रोटेट हो रहा है. जैसे सील अभी है, सील इज वेरी फ्यूचरिस्टिक. एंड यू आई सीन द कार वेरी क्लोज Atto 3 को. तो उसमें ना आप देखोगे जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं कितने फ्यूचरिस्टिक हैं. ट्रेडमिल से इंस्पायर्ड उसका आपका ये हैंडरेस्ट है. गिटार से इंस्पायर्ड उसके नीचे के डोर पॉकेट्स वगैरह हैं. और सुपर कार से इंस्पायर्ड उसका वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. सामने जो स्टीयरिंग जब आप रोटेट करोगे तो स्टीयरिंग के साथ वो रोटेट करता है, इसलिए मैक्लारेन स्टाइल. सो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट. और वही है कि चाइनीज लोगों का आपको भी मालूम है कि इनोवेशन में वो पीछे नहीं हटते हैं, भले किसी की कॉपी करनी पड़े, पर उनको अपना चाहिए सॉलिड प्रोडक्ट. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में तो असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. जो लोग ले भी ले रहे हैं उनको भी वो ये कि आप 4 जगह जाओगे फिर कोई दूसरा बोलेगा. तो खुद अगर आपके अंदर इतनी कन्विक्शन है, मे बी सी द थिंग इज कि ऐसा नहीं है ना कि कुछ परमानेंट एनिमी टाइप की चीज है. मे बी द सिचुएशन इंप्रूव्स. पाकिस्तान के होते तो बात अलग थी. तो वो फिर उससे क्या हो जाता है कि सडनली दैट कार विल बिकम वेरी पॉपुलर. आज मैं उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ? बिकॉज आई बिलीव दैट आई डोंट वांट टू पुट माय मनी फ्रॉम अ कार ऑफ दैट ओरिजिन. मुझे एक तो ये भी डर है, क्या पता कि कल को जो ये लोग पैक कर दे कंपनी को. सबसे ज्यादा एक ये भी डर है, क्या पता 4-5 साल या 4-5 इयर्स बाद कंपनी बंद हो जाए. दैट इज प्रोबेबल बिकॉज़ इफ यू लुक एट इट, एक बार भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसे वो क्या पुलवामा में हुआ था, कुछ भी इस टाइप का हो गया, तुरंत सब लोग उसको पैक ही कर देंगे. एंड टिकटॉक को ही बैन कर दिए. टिकटॉक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. अलीबाबा बैन हो गया. अली एक्सप्रेस. तो वही अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, बहुत सारे होटल्स वाले दुखी थे उससे. हाँ, अली एक्सप्रेस से तो बहुत सारी चीजें, टॉयज वगैरह, वॉच के स्ट्रैप्स में खरीदा करता था अली एक्सप्रेस से. So that is always there if you look at it. I mean, you look at TikTok ना, इतने सारे मिलियंस वाले फॉलोअर्स वाले जो मतलब एकदम उधर सुपरस्टार थे. The world knew them. Suddenly all gone. और TikTok से बहुत पैसा कमा रहे थे वो लोग. तो लोगों की लाइवलीहुड जब वहाँ से जा सकती है तो प्लस आई थिंक इनमें फिर आप देखो निसान आज के डेट में जापानीज कंपनी है. हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज आई फॉरगॉट टू मेंशन, नाउ आई टेल यू. BYD के बारे में हम लोग इतना सोच रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसको किससे कम्पीट करा रहे हैं? जापानीज कार से, मोस्ट ऑफ द टाइम. फन फैक्ट, जापान का 70% इलेक्ट्रिक बस का मार्केट शेयर BYD के पास है. अच्छा, ये I'm sure you did not know this. I didn't know that. So कंपनी वो भी बहुत मेहनती है.
आप सोचो कि वो जापान में जाके जब वहाँ का 70% मार्केट कैप्चर कर सकती है इलेक्ट्रिक बसेस का, वो भी जो कि कमर्शियल व्हीकल है, दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. आप यूके वगैरह के कार रिव्यूअर्स की वीडियोस देखो, डायरेक्ट कंपैरिजन सील का टेस्ला के साथ, डायरेक्ट कंपैरिजन. दे आर नॉट इवन बीटिंग अबाउट द बुश की जैसे स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो कह रहे हैं कि ये किस सेगमेंट में बैठेगी, ये शायद मित्सुबिशी से कंपेयर करे, शायद फॉर्च्यूनर से करे. वहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्ट दे आर प्रॉपर्ली रिव्यूइंग बोथ द कार साइड बाय साइड कि इसमें ये मिलता है, इसमें वो मिलता है. दैट आई थिंक. और हाँ, इंडिया में आप देखो, निसान की मैं बात कर रहा था, निसान की आज की डेट में बस एक गाड़ी आ रही है. निसान कैसे फेलियर हो गई? मतलब दुनिया में इतनी ज़्यादा हिट है वो गाड़ी, लेकिन निसान नेविगेटर, निसान की जी सबके जमाने वो, और जूक करके एक आती है, वेरी अगली बट वेरी पॉपुलर. वेरी पॉपुलर. सिंगापुर में जब मैं पढ़ता था, हर कोई जितने स्टूडेंट्स थे निसान जूक के पीछे पड़े रहते थे. तो निसान जैसी कंपनी इंडिया में कैसे फ्लॉप हो गई? मतलब दैट इज मतलब रेसिपी फॉर अ सक्सेस. निसान जैसी कंपनी मास मार्केट कार में तो लग रहा था मारुति को हरा देगी एक जमाने में. कैसे मतलब कैसे फ्लॉप हो गई? दैट इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सी ऑनेस्टली आज के डेट में आप देखोगे, जब हाईराइडर को ग्रैंड विटारा बनाया जा रहा है, तब वो बोल रहे हैं बैज इंजीनियरिंग ये क्या चल रहा है. बट पहले आप देखो, निसान और रेनो कोलैबोरेशन, सारी गाड़ियां वही थी जैसी निसान सनी, रेनो स्काला, आई थिंक स्काला वाज द नेम और समथिंग. उसके बाद डस्टर टेरानो, माइक्रा पल्स, एक साथ. अभी भी आप देखोगे, आई थिंक इट्स काइगर और मैग्नाइट, बोथ ऑफ देम अबाउट द सेम चैसी एंड एवरीथिंग, बस वो थोड़ा है. कोलैबोरेशन के बाद भी और रियली वर्क फॉर रेनो. आई थिंक क्विड टाइप की गाड़ी इनके पास नहीं थी. रेनो में क्विड चल गई, डस्टर चल गई, तो थोड़ा निकल गया. टेरानो भी उतनी सक्सेसफुल कभी नहीं रही जितनी डस्टर रही. स्टार्टिंग में हल्की सक्सेसफुल थी टेरानो, आई रिमेंबर. बट वही है कि मतलब इट लुक बेटर. पर्सनली मैं बोलूँ तो टेरानो के लुक्स थोड़े ज्यादा अच्छे लगते थे. बट वही है, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ zoomed आउट पिक्चर, गाड़ियाँ उनकी ऐसे कभी पसंद आई नहीं जो जिस भी सेगमेंट में हो गए. सनी बहुत लंबी थी, इट्स नॉट अ कार, इट्स अ कार, बट लोगों को चाहिए ही नहीं. होंडा सिटी ले रहे, कुछ भी ले रहे. माइक्रा वाज अ वेरी गुड हैचबैक, किसी को वो भी नहीं चाहिए थी. और एक्सट्रेल तो खैर वो सेगमेंट में तो आप शेवरोले को देख लो, कैप्टिवा, ट्रेल ब्लेजर, अच्छी गाड़ियां निकाली, कोई नहीं चली. निसान की एक्सट्रेल भी कोई खास सक्सेसफुल तो रही. मैं उनमें सीरियस एक्सट्रेल भी ली थी. That's what I look at your graph of the cars you own. Very interesting cars, and जितनी फ्लॉप गाड़ियां हैं सारी मैंने ओन की है. But these are all enthusiast cars. That's what you need to realize कि मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो दूर से लोगों को नहीं समझ में आती हैं. But people who own them, if you talk to them about it, CR-V you had, Grand Vitara you had, X-Trail you had. मतलब उस जमाने में लोग, I think उस टाइम पे कौन सी SUV चलती थी? ये सब जब जिस जमाने की गाड़ियां हैं, मे बी फॉर्च्यूनर का फर्स्ट जेन रहा होगा. पजेरो स्पोर्ट एक जमाने. हाँ, पजेरो चलती थी. बाकी फिर ये सब वही है, ज्यादा कोई लेता नहीं था. सफारी वगैरह थोड़े बजट में आ गई तो सफारी लोग ले लेते थे. ये बात अलग है कि सफारी फिर मेंटेनेंस में बहुत रूल आती है. निसान की वो भी तो आती थी सेडान, जो बहुत ज्यादा, वो भी एक्सट्रेल इतनी महंगी थी. हाँ, टियाना. मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसके पास टियाना है. I also know. टियाना. My friend in Odisha, he's got a Tiana. अच्छा, I know someone in Varanasi. Oh, interesting. जिसके पास निसान का शोरूम था, उसी के पास है सिर्फ. He has it. उस बेचारे को जबरदस्ती करके सबने, उन लोगों ने फोर्स किया था टू बाय निसान टियाना, और वो इस दिन तक चलाता है. इट इज नेक्स्ट लेवल. उसमें बैठोगे गाड़ी में, नेक्स्ट लेवल का रिक्लाइनर. हाँ, V6 रिक्लाइनर लगे हुए अंदर, ऑटोमेटिक, प्रॉपर ऑटोमेटिक. अभी तक टू दिस वेरी डे देयर आर टाइम्स जब हम लोग, जो तेजस्वी मेरे दोस्त का नाम है, उसी का निसान का शोरूम था यहाँ पे, तो मैं तेजस्वी कहता यहाँ पे टियाना लेके आओ, उसमें चलता है. And then you got to set up a meeting. We'll do a review of his car. It's very interesting. और अभी तक it's in top condition. निसान जो उसकी टियाना जो है, well maintained, very very well maintained car. Which color that? Maroon white color. अच्छा, white. That's a very rare. वही मैं बोला. फिर आप देखो, रेनो की भी कुछ गाड़ियाँ आई थी. एक आई थी कोलियोस, which was a SUV, and there was another Fluence, Renault Fluence. हाँ, तो that was also a very long car. वो भी आती थी उस जमाने में, बहुत पहले 20-20 लाख की आती थी. तो उस टाइम पे लगता था, कहीं पे मैंने ये गाड़ियाँ देखी हैं, बट वो ये पेपर पे ये सारी रह गई. बट टियाना वाज अ वेरी नाइस कार. वेरी नाइस कार. अच्छा, आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर यू. नंबर 1, क्या सेलिब्रिटीज जो है वो लोगों की बाइंग को इफेक्ट करते हैं? सेलिब्रिटी जो एंडोर्समेंट्स हैं.
सी पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं और आप सेलिब्रिटी के इंडोर्समेंट से इन्फ्लुएंस होने वाले होते तो फिर आप ऐसी गाड़ियाँ मतलब शायद लेते कि नहीं लेते जो आपने ली, जैसे कि व्हाट द कार्स व्हिच यू लाइक्ड, ग्रैंड विटारा का इंजन पसंद आया लिया, जैसे उस तरीके से. सो द कार बायर नॉर्मल हु इज एन एंथुसियास्ट, ही बाइज ऑन परफॉर्मेंस, सेफ्टी, इन सारी चीज़ों से. शाहरुख खान वगैरह, दीपिका पादुकोण ऐसी Hyundai के बहुत सारे करते हैं. आई वुड से प्रॉब्ली 5% पीपल, मे बी इट हेल्प्स देम इन स्वेइंग देम अ लिटिल. रियल जो मुझे सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है वो इस पैपराजी कल्चर से नज़र आ रहा है. जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करोगे ना तो आप देखोगे कि बॉम्बे में ये पैप्स घूमते रहते हैं, कौन किस गाड़ी से उतर रहा है, चढ़ रहा है. कॉमन मैन को ये पता चल चुका है कि सिर्फ गाड़ी का ऐड कर रहा है पैसों के लिए, ये खुद उसमें नहीं चलता है. पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने एक्चुअली में किन गाड़ियों को किया है? रेंज रोवर, टोयोटा वेलफायर, जी वैगन, मर्सिडीज GLS. दीज आर द कार्स व्हिच यू एक्चुअली सी देम इन. लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह भी आप देखोगे, रोहित शर्मा, रणवीर सिंह, तो मतलब वो तो खैर परफॉर्मेंस कार है, जिसको पसंद है, जिसके पास पैसे हैं वो जाके ले लेगा. ही इज नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट. बट वेलफेयर वगैरह आप देखोगे तो दे आर मच चीपर देन व्हाट G63 कॉस्ट. किसी के पास उतने पैसे थे शायद वो कुछ और लेने वाला होता, बट ही इज रियलाइजिंग कि अगर अमिताभ बच्चन उसमें चल सकता है तो शायद मेरे लिए भी अच्छी हो. और वेलफेयर तो ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज अब सारे यूज कर रहे हैं, बिकॉज़ इट्स अ प्रॉपर यू नो वी क्लास आती थी, बट वी क्लास से ज्यादा लग्जरी ऑफर कर रहे हैं. हाइब्रिड इंजन है, वो प्रीमियम ज्यादा है, एंड लुक्स वेरी नाइस. वी क्लास वाज अ प्रॉपर वैन, और ये तो वेलफेयर तो नेक्स्ट लेवल लग्जरी. हां वैन तो ये भी है, लेकिन नेक्स्ट लेवल. हां इट लुक्स वेरी नाइस. इफ यू लुक एट अ वेलफेयर यू विल स्माइल. वो आप पुरानी वाली देख लो, नई वाली देख लो. या बनारस में 2 लोगों के पास मैंने वेलफेयर देखी अभी तक. सर नाइस, वेरी नाइस कार. I think this is how celebrities actually are influencing. Endorsement मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा काम तो कैसे कम भी हो गई endorsement. पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी माइक्रा की. Like Fiat had gifted Sachin Tendulkar this Palio, if you remember. हाँ long back. वो Palio का बहुत वो यूनिक कलर आता था. कलर येलो कलर की आती थी और उसमें वो 1.6 इंजन SRT एडिशन होता था. लोगों ने कोशिश तो की है. धोनी वगैरह को आप देखोगे, धोनी के पास ऐसे जैसे कोई इंटरेस्टिंग कार्स होती है. RX100 नॉर्मल कोई आदमी है, RX100 को कोई पूछता नहीं था. धोनी के पास जब से देख लिया तब से इंटरेस्ट उसकी तरफ जाग गया. जो बाइक है RX, हां यामाहा वाली. तो आई थिंक दैट्स हाउ दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द बायर, नॉट ऑन पेपर विद एंडोर्समेंट्स. ऐसे कुछ नहीं. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन. अगर इंडियन बायर्स के लिए आप एक अल्टीमेट कार डिजाइन खुद कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं? इंडियन बायर एंड इंडियन रूल्स. See, this is I think what we are seeing in the common trend. Common trend आपको देखोगे यही चलता है कि you get the high ground clearance cars. भले ही वो कैसी छोटी हो, बड़ी हो, टाटा पंच, एक्स्ट्रा सब high ground clearance. So high ground clearance शायद प्रायोरिटी है इंडियन बायर के लिए, तो वो आप दोगे तभी सक्सेसफुल रहेगी. सेडान्स जा रही हैं, Volkswagen Virtus वगैरह जैसी सेडान्स आई, उसमें भी high ground clearance 180 mm उस तरीके से. Then फीचर्स अगर मुझे डालने होंगे, देखो बेसिक सेफ्टी में इंडिया को कम प्रायोरिटी मिलती थी, टाटा ने उसको इम्प्रूव कर दिया, तो अभी सेफ्टी आपको देनी पड़ेगी. आप सेफ्टी एयरबैग्स ये सब जो होते हैं, एयरबैग्स के साथ साथ जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन होती है उसको अच्छे क्वालिटी की स्टील से. और फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा हो गया, ड्राइविंग असिस्टेंस एड्स हो गए. और हाँ, अगर ऐसे कोई जेम्स बॉन्ड टाइप का इंटरेस्टिंग फीचर डालना पड़ेगा तो मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़े जो ई-रिक्शा वाले और बाइक वाले होते हैं उनके लिए साइड में कुछ ऐसा हो जाता कि वो बिल्कुल सट जाते हैं आपकी गाड़ी से. सो दैट इज वेरी अननर्विंग, स्पेशली हाँ वो छोटी सी गाड़ी आपकी खुद की है. कॉमेट तो मेरे जो साइड मिरर से कितनी बार लोग उड़ा के लेके जा चुके हैं गिराते हुए. वेरी पेनफुल. इफ यू लव कार्स दैट्स अ वेरी पेनफुल फीलिंग. एंड व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग कलर्स आल्सो दीस डेज इन कार्स, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. ऑफ कोर्स. You get your question? So which is the most expensive die cast you have? Most expensive die cast. I think it's auto art. तो sizes अगर मैं basically explain कर दूँ, Hot Wheels is 164, छोटी सी होती है, उससे बड़ी 118 is almost this big. It's a auto art. It's a very premium brand. Mercedes C-Class W204 pre-facelift. थोड़ा टेक्निकल है, वो सिल्वर कलर की है, कंप्रेसर वाली. हाँ कंप्रेसर, एग्जैक्टली दैट वन. एंड इट वाज अ गिफ्ट. I've got a senior in law, तो वो he is very kind, he gifted that to me and it's a very special car. मतलब ऐसे गिफ्ट्स तो प्राइसलेस होते हैं, बट इफ यू लुक एट द वैल्यूएशन वो जाती है, मतलब इट क्रॉसेस $700-800. तो मतलब इंडिया में इंपोर्ट करोगे तो 1000 आराम से पार करेगी. यूएस में भी लेना है तो ईबे पे आप उसको $700 की लोगे. वैल्यूएशन में वो है. वैसे हॉट व्हील्स वगैरह भी है महंगी, उनका प्राइस वो फ्लक्चुएट करता रहता है. जैसे मैंने कोई ली मान लो $10 की,
कल वो 100 पहुंच जाएगा, फिर हॉट व्हील्स क्या करेगा, खुद से ही दोबारा उसका कोई वर्जन रिलीज कर देगा, तो लोग मुझे 100 देने के बदले वो नहीं खरीद लेंगे, तो मेरी वाली 100 से घट के 70 पे आ जाएगी। इस तरीके से वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। So I was fascinated about cars since I was a kid. But you have taken my fascination to the next level, sir. Thank you so much, sir, for this show. Thank you, brother. Thank you for doing this. Thank Your you. presence has immense value, sir. Thank you.